So hi everyone, welcome to the new vlog. I'm so excited that finally you guys are preparing for CAT 2024. That's why you guys are watching this video. So basically यहाँ पे अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो make sure that you keep notes of 5 things which I'll be sharing in this video, and you should also comment what I'm asking for. I would request everyone to comment their 10th का percentage, 12th का percentage, graduation का percentage, their category, their stream, whether they are non-engineer or engineer, that would be okay with me, and gender, I mean male or female, so that I can review your profile and give you an estimation of what you should target for Blackie, what you should target for new and baby IIMs. So before starting this video, I really want everyone to comment. And if you're preparing for CAT 2024, you should definitely check out my Instagram page as well. वहाँ पे मैं काफी अच्छा content डाल रहा हूँ. That will keep you motivated throughout your journey. So I'll be sharing 5 tips जहाँ पे it is very essential for you guys to know that अगर आप ये 5 चीज जान जाओगे तो काफी easy होगा आपका preparation. And आपने मेरा placement vlog भी देखा होगा, आपने first day of my office भी देखा होगा. तो if you need something more on this, please let me know on the comment section. And guys, one more thing. In this journey, you are not alone. I'll be helping you throughout the journey. तो जो भी help चाहिए, you can actually reach out to me on Instagram, YouTube comment. Generally, I will be replying to everyone on Saturday and Sunday. So Saturday, Sunday को remind कर सकते हो आप. अगर मैंने आपका क्वेरी को रिवर्ट नहीं किया है तो आई विल डेफिनेटली ट्राई माई बेस्ट कि मैं 10 से 15-20 लोग को मैं हर सैटरडे संडे वीकेंड्स को रिप्लाई कर दूँ. यस, सो कैट 2024 के लिए 5 टिप्स जानना था, बट उससे पहले क्या आपने कोचिंग ज्वाइन कर लिया है? अगर नहीं किया है तो डेफिनेटली यू शुड ज्वाइन. अगर आपको लग रहा है आप सेल्फ प्रिपेयर कर सकते हो, डेफिनेटली यू शुड गो विद सेल्फ प्रिपरेशन. बट अब मार्च स्टार्ट हो चुका है, सो वाई नॉट टू टेक अ गुड कोचिंग विच इज़ वेरी अफोर्डेबल इन द मार्केट, and there is a very good institute which is physics wala. So if you just check out their great content in YouTube, free में उनका content है YouTube पे, अगर आप उनको उस content से satisfy हो तो you should definitely check out their 2 courses which is MBA Pioneer and MBA Pioneer Pro 2024. अभी उनका बहुत ही अच्छा ऑफर भी चल रहा है, विश्वास दिवस which is from 20th of Feb till 10th of March, and काफी अच्छा उसमें content है because अगर आप उनका रिजल्ट देखोगे लास्ट ईयर का तो more than 77 plus students have scored 99 plus percentile, more than 135 plus students have scored 98 percentile, and सबसे अमेजिंग चीज 1800 से ज्यादा बच्चे 90 प्लस परसेंटाइल आए. एंड अगर आपको पता है तो न्यू आईएम्स एंड बेबी आईएम्स का कट ऑफ होता है 92. तो इफ यू क्लियर इवन 92% विल यू बी डेफिनेटली गेटिंग सम गुड कॉल्स फ्रॉम आईएम्स. बेबी एंड न्यू आईएम्स तो मिल जाएगा आपको, बाकी इंटरव्यू प्रिपरेशन विल वर्क ऑन टुगेदर. सो जस्ट चेक आउट देयर ग्रेट कंटेंट ऑन यूट्यूब, एंड वंस यू आर सेटिस्फाइड, उनका 2 अमेजिंग बैचेस है, एमबीए पायनियर प्रो एंड एमबीए पायनियर 2024, विच यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. दोनों में क्या डिफरेंशिएट है, क्या फीचर्स है, आप आराम से स्क्रीन में देख सकते हो. सो फॉर ए लिमिटेड टाइम के लिए एमबीए पायनियर 2024 बैच की प्राइस 15,999 से रिड्यूस करके अब 5,999 कर दी गई है, एंड एमबीए पायनियर प्रो 2024 बैच 30,999 से रिड्यूस करके 11,999 कर दी गई है. सो इफ यू आर समवन हु इज लुकिंग टू स्कोर वेरी गुड स्कोर्स इन देयर कैट 2024 एंड दैट टू इन अ वेरी अमेजिंग अफोर्डेबल प्राइस, फिजिक्स वाला इज द बेस्ट ऑप्शन. ट्रस्ट मी गाइस, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है. 2-3 साल हुआ and they are just like beating best in the CAT market. So all the best. If you have any queries, you can reach out to me on the comments. Let's start with the 5 tips which I wanted you to listen and understand and note it down. And guys, I have shared all the links in the description. मैंने उसको पिन भी कर दिया है, तो प्लीज चेक आउट दोज 2 अमेजिंग कोर्सेज. जो भी पसंद आए, यू शुड डेफिनेटली ज्वाइन इट. बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है, अमेजिंग फीचर्स है. यू विल बी गेटिंग ग्रेट रिजल्ट इन कैट 2024, एंड डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड AN500 फॉर एडिशनल डिस्काउंट ओनली फॉर यू. सो टिप नंबर 1, मैं बहुत ही स्पेसिफिक रहूंगा. आई विल बी टेकिंग हार्डली 2 to 3 minutes. 5 टिप्स फटाफट लिख लो. सबसे पहला चीज, सिलेबस जाके देख लो. क्या सिलेबस है, क्या पढ़ने वाले हो, कहाँ से क्वेश्चंस आएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्पेसिफिकली आप क्वांट स्टार्ट करो, बिकॉज एरिथमेटिक और अलजेब्रा बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है. क्वांट्स ही एक ऐसा चीज है जिसमें बहुत ही वास्ट सिलेबस है. इफ यू कंप्लीट योर क्वांट्स बाय द एंड ऑफ May और June, you'll be very much satisfied internally that हाँ मेरे को आता है. बाकी VRC and LRDI, it will hardly take you, VRC will take you hardly 10-15 days to understand the pattern and everything. बाकी तुम्हारे aptitude level के ऊपर है. The more you work on, definitely you will be getting good scores. And LRDI hardly 1 month का है. अगर आप सिलेबस को स्पेसिफिक करोगे तो ज्यादा उसमें नहीं है. इट जस्ट वुड टेक यू हार्डली 1 month टू अंडरस्टैंड द एप्टीट्यूड लेवल ऑफ व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस LIDI वुड बी पुटिंग ऑन. बट क्वांट्स सच में बहुत ज्यादा वास्ट है, तो मेक श्योर दैट यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम क्वांट्स. 2 टॉपिक है,
एरिथमेटिक अलजेब्रा 70% या 80% का क्वेश्चन सिर्फ ये 2 टॉपिक से आता है। प्लीज ये नोट, पॉइंट नंबर 1 तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर यू कीप नोट ऑफ इट कि भाई क्वांट से स्टार्ट करेंगे एंड साथ साथ बीआरसी एलआईडी को भी लेके चलेंगे। मई जून जुलाई तक खत्म हो जाना चाहिए सिलेबस मैक्सिमम, ठीक है। सो पॉइंट नंबर 2 ये है कि गाइज you should look out to someone who is actually have been there to the journey. So maybe you can ask someone who has given CAT 23. अगर आप फर्स्ट टाइम कैट अटेम्प्ट कर रहे हो तो एक बार प्लीज सीनियर को रीच आउट कर लो जिसने भी कैट 23 दिया है। अगर आप सेकंड टाइम दे रहे हो तो आपको ये नोटिस करना है कि आपने क्या मिस्टेक किया था, मॉक्स में कम क्यों आ रहा था या मॉक्स में कम अटेम्प्ट किया था, या मतलब जो भी है सिलेबस कंप्लीट नहीं किया था। जिस भी सेक्शनल में आप वीक कर पा रहे हो उस सेक्शनल में आपको वर्क करना है। मैं एक स्ट्रैटेजी देता हूँ 8-6-8 का स्ट्रैटेजी विच आई हैव बीन सेइंग फॉर लास्ट 2 years, एंड अगर आप इसको फॉलो कर लोगे इजीली 95 परसेंटाइल आएगा एंड यू विल बी क्लियरिंग ऑल द सेक्शंस। कैट इज नॉट जस्ट अबाउट गेटिंग ओवरऑल percentile, it is also to get clearing in all particular 3 sectionals which is like 80 percentile का होता है जनरल कट ऑफ। तो आपको 80 परसेंटाइल हर सेक्शनल में लाना है। उस 80 परसेंटाइल लाने के लिए 9-8-6-8 अगर आप राइट करते हो आराम से 8-8-16 22 क्वेश्चन आपको राइट करना है। अगर आप 22 क्वेश्चन राइट करते हो तो आपको आराम से 90-95 परसेंटाइल इजिली बनेगा एंड यू विल बी क्लियरिंग ऑल द सेक्शंस। ये था पॉइंट नंबर 2, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। पॉइंट नंबर 3 ये है कि मॉक्स देना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को पता है बहुत लोग मॉक्स से डरते हैं। अभी आपको देने की जरूरत नहीं है, अभी मार्च चल रहा है तो मार्च में तो ठीक है, इट्स फाइन, अगर आप नहीं भी देते तो चलेगा। बट यार मई जून जुलाई से स्टार्ट कर देना, एटलीस्ट जून से तो स्टार्ट कर देना अगर आप फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो अगर आप मतलब you're a second, third or fourth repeater, please start your mocks as soon as possible. Guys, you already know what kind of syllabus you had prepared. It's just that you need some grooming for the next 2-3 months, which is like March and April. May से आप start कर सकते हो, तो कोई भी अच्छा मॉक टेस्ट पेपर आप ज्वाइन कर सकते हो, whichever you like the best, and definitely you should attempt 20 मॉक्स तो मिनिमम करने चाहिए। मैंने खुद 15-16 किया था, आई वॉज द फर्स्ट अटेम्प्टर। तो अगर आप कर रहे हो तो 20 तो कर लो आराम से। एंड सेक्शनल मॉक्स ज्यादा देना, सेक्शनल मॉक्स विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग यू आर गेटिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर सेक्शन। एंड टॉपिक वाइज का भी आता है आजकल, तो टॉपिक वाइज भी सेक्शन अगर आप मॉक पेपर्स दे देते हो तो उससे आपको पता चलता है कि अगर मैंने परसेंटेज खत्म कर दिया, मैंने अरिथमेटिक में ये परसेंटेज खत्म कर दिया, अलजेब्रा खत्म कर दिया, या जो भी है व्हाटएवर काइंड ऑफ टॉपिक्स यू आर कंप्लीटिंग, एंड इफ यू गिव दैट पर्टिकुलर टॉपिक का मॉक यू विल बी अंडरस्टैंडिंग कि तुम्हारा कहाँ पे एप्टीट्यूड अच्छा हो रहा है, कहाँ पे खराब हो रहा है। तो आई वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग विद अरिथमेटिक, सो दैट हेल्प मी बिकॉज मेरे को पता था सर मेरे को 2 टॉपिक में काम करना है, अरिथमेटिक अलजेब्रा। तो ये 2 टॉपिक में मैंने काम किया था, आपको भी इस 2 टॉपिक में काम करना है। मैंने लास्ट टाइम बताया सेकंड पॉइंट में कि 8 क्वेश्चन करेक्ट करने हैं। 8 क्वेश्चन बीआरसी में, 6 क्वेश्चन एलआईडी में और 8 क्वेश्चन क्वांट में। थर्ड पॉइंट ये है कि मॉक पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज अटेम्प्ट करना। चलते हैं 4th पॉइंट पे। या 4th पॉइंट पता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और नहीं भी, मतलब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए बोलूंगा बिकॉज जब मैंने स्टार्ट किया था अपना प्रिपरेशन तो मेरे को पता था कि मैं कौन से कॉलेज में जाना चाहता हूँ, मेरे को पता था कि मेरे को ये फॉर्म्स भरने हैं। आई वॉज वेरी क्लियर दैट आई एक्चुअली वांटेड टू गो टू ब्लैकी IIMs। तो मेरे को सिर्फ IIM के फॉर्म्स भरने एंड मेरे को वहाँ जाना ही जाना, दैट what my mentality है। उस समय का बच्चे वाला मेंटालिटी था। बट आई वुड रेकमेंड एवरीवन टू गिव अदर एग्जाम्स एज वेल। ओमेट बहुत अच्छे एग्जाम्स होते हैं, स्नैप हो गया, मैट हो गया, टेस्ट हो गया, IFT तो शायद बंद हो गया। सो वॉट एवर ओमेट्स हैज देयर, प्लीज उसके फॉर्म भरना एंड प्लीज यू शुड बी क्लियर दैट मैं कौन सा एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा हूँ। ऑब्वियसली कैट शुड बी योर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, बट एट द सेम टाइम यू शुड नो दैट इफ कैट नहीं होता तो आई विल बी एबल टू हैंडल दिस पर्टिकुलर एग्जाम इन द मंथ ऑफ दिसंबर। नवंबर में एग्जाम होता है, नवंबर के लास्ट वीक में एग्जाम होता है कैट का। उसके बाद तुम्हारे पास 20-25 दिन, 1 महीना होता है एंड यू कैन एक्चुअली क्लियर दैट SNAP and MAT, whatever other OMETs you have. So make sure that you have that mindset and बाकी मेरे जैसे अगर तुम strict mindset रखोगे तो that can actually help you also, that can actually make you down also. So I won't recommend everyone to not go for non-IIMs. I would definitely want everyone to go. Just be settled यार, in the end it matters what the package you are earning. It matters the money that you're getting in your bank balance, not the college. ठीक है, प्लीज OMETs में भर देना यार, थोड़ा एफर्ट डाल लो। मैंने किया था, इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी ना करो, मैं रेकमेंड करूंगा बहुत स्ट्रिक्टली। 5th पॉइंट ये यार, सिलेक्शन क्राइटेरिया देख लो यार प्लीज। मैं लिंक्डइन में हर 2-3 या 3 thrice in a day I put one post about the selection criteria of an IIM and I'll be continuing that series for non-IIMs as well. आपको पता होना चाहिए कि आप जिस कॉलेज के लिए टारगेट कर रहे हो क्या आप उसके लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। मतलब IIM कोई का अगर आप देखोगे सिलेक्शन क्राइटेरिया
दे हैव गिवन ए ह्यूज वेटेज ऑन द 10th एंड 12th एंड नॉन इंजीनियर्स को भी 10 पॉइंट एक्स्ट्रा देते हैं. सो दीज आर सर्टेन क्राइटेरिया दैट यू शुड नो. सिमिलरली IIM इंदौर का भी बहुत ज़्यादा 76% वेटेज इज गिवन टू just academics. So CAT में even if you get very less percentile like 95, 91, 92, you can actually even 85 वाले बच्चे भी क्लियर करते हैं जनरल कैटेगरी के just because they have a very great ACATS in their 10th and 12th which is 99 plus and graduation as well. तो अगर आपका अच्छा प्रोफाइल है तो आपको पता है कि आपके लिए कोईकोर और इंदौर बहुत अच्छा हो सकता है. सिमिलरली अगर आपका ये अच्छा नहीं है, अकेडमिक्स अच्छा नहीं है, तो विच कॉलेजेस आर मोर सुटेबल फॉर यू टू गेट एन ईजी एंट्री जस्ट बिकॉज यू हैव अ ग्रेट कैट परसेंटाइल. तो ये जो सिलेक्शन क्राइटेरिया ना, प्लीज़ उसको जाके या तो रिसर्च कर लो या फिर लिंक्डइन का मैंने यहाँ पे अपना चिपका दूंगा, लिंक्डइन में जाके मेरे को फॉलो कर लो. डेफिनेटली लव इट. एंड बाकी कोई भी रिकमेंडेशन चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, आई एम ऑलवेज अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम, यूट्यूब. लिंक्डइन पे बहुत कम रिप्लाई करता हूँ मैं, नहीं हो पाता भाई मेरे पास टाइम, बट आई विल डेफिनेटली ट्राई. मेरे को रिमाइंड करते रहो यार, सैटरडे संडे आई विल बी मोस्टली अवेलेबल. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर कैट फ्रेंड्स. और जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए मेरे को बता देना, ठीक है. मिलते हैं यार, बाय, कीप शाइनिंग, लव यू ऑल.